ہیلو، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ جی میری وائس کلیئر آ رہی ہے؟ بس میوٹ کر لیں اپنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری وائس آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی ہے۔ کوئی ایک بتا دیں۔ اچھا ٹھیک، چلیے آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ 4 سبق ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ 5واں سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 5۔ سبق نمبر 5 سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہمارا جو بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سمجھے؟ جو ہمارا بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین جو ہے وہ درست ہو جائے، اللہ کے بارے میں اور اللہ کی طاقت اور قدرت کے بارے میں۔ کیونکہ جب تک ہمیں اس بات کا پختہ یقین نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے، چونکہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ لا الہ، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے لا فرمایا۔ لا مطلب، اور آگے فرمایا الہ بولتے ہیں معبود کو۔ لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، پوری بات ہوگی، لیکن یہ آگے پوری بات نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے پہلے انکار کرایا تمام کے تمام بندوں سے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آگے فرمایا الا اللہ، صرف اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کو ہم مانتے ہیں اور جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، یا یہ کہ جس کو ہم پکار سکتے ہوں، جس سے ہم اپنے کام بنوا سکتے ہوں، جس سے ہم اپنی دعائیں قبول کرا سکتے ہوں،
جس سے ہم اپنے مسائلوں کو حل کرا سکتے ہوں. وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اور صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات. باقی اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو ہماری دعائیں قبول کر سکے، جو ہمارے مسائل حل کر سکے، جو ہماری تکالیف دور کر سکے، جو ہماری جو ہے تمنائیں پورا کر سکے، جو ہمیں رزق دیتی ہو، جو کہ ہمیں سلانے والی ہو، جو ہمیں اٹھانے والی ہو، جو ہمیں زندہ کرنے والی ہو، مارنے والی ہو. کوئی دوسری ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے. اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے. باقی جتنے بھی معبود ہیں دنیا کے اندر، جو اللہ کے علاوہ جتنے لوگ جتنے معبودوں کو مانتے ہیں، وہ تمام کے تمام معبود جھوٹے ہیں، تمام کے تمام معبود باطل ہیں. سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے محتاج، سب کے سب. ان تمام میں کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. صرف اور صرف اللہ ہی ایک حقیقی معبود ہے، اللہ ہی ایک حقیقی رب ہے. تمام جہانوں کے، تمام چیزوں کے صرف اللہ ہی مالک. بعض لوگ دو خدا مانتے ہیں، تین ہیں، لیکن ایسا نہیں. یہ تمام کے تمام خدا باطل ہیں، تمام خدا جھوٹ، صرف ایک حق اور وہی معبود حقیقی واحد. فرمایا کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد اس بندے نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ کر لی، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. اس کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والے ہیں، غفور. تو اللہ نے بخش دیا اس کو. لیکن رحمان جو فرمایا کہ اللہ غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، مطلب اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے بعد اس پر رحمت بھی نازل فرماتے ہیں. مثلا گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے معاف فرما دیا. معاف فرمانے کے بعد اللہ نے پھر اس کے اوپر اپنے بندے سے خوش ہو کر اس کے اوپر رحمتیں نازل فرما دی، مطلب نعمتوں سے نواز دیا، اسے اللہ نے نعمتیں دے دی. تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی. اسی کو بولتے ہیں اللہ رحمان اور رحیم دونوں ہیں، رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، رحمت کرنے والے بھی ہیں، رحمت بھیجنے والے بھی ہیں، نعمتوں کو برسانے والے بھی ہیں. بے شمار اللہ کی صفات یہ. تو اس لیے ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ صرف ایک ہے، معبود حقیقی صرف ایک ہے. یعنی جو حقیقت میں اللہ ہے، جو حقیقت میں معبود ہے، جس کی حقیقت میں عبادت کی جا سکتی ہے، جس کی حقیقت میں جس کو مانا جاتا ہے، جس کو حقیقت میں اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، جس کو حقیقت میں اپنا خالق و مالک سمجھا جاتا ہے، جس کو حقیقت میں پکارا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے، دو نہیں. اور رحمان بھی اور رحیم بھی ہے. آگے فرمایا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی جو نام ہیں وہ 99 نام، 99. تو ان کے بارے میں آتا ہے فضائل حدیث کے اندر کہ جو بندہ اللہ کے 99 ناموں کو حفظ یاد کرے گا، جو بندہ یا بندی اللہ کے 99 ناموں کو حفظ یاد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کو جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ اب دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے 99 نام۔ آج ہم دیکھیں کہ آج ہمیں کتنے نام یاد ہیں، کیونکہ آج ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ آج بے دینی سے بھر چکا ہے، بے شمار فتنوں سے بھر چکا ہے۔ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہماری زندگیاں فتنوں کے ساتھ میں ملوث ہو چکی ہیں، بھر چکی ہیں۔ کتنے لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارا ان سے کنیکشن بھی نہیں ہے، کوئی ہمارا تعلق بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے ہمیں نام معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج کل کے اندر، ایکٹرز ہوتے ہیں، اپنے ایکٹرز کے نام یاد ہوتے ہیں، کسی نے کسی کو 10 12 15 16 18 20 تو نام یاد ہوں گے، ہوتے ہیں، چونکہ معاشرہ ایسا ہے، بے دینی کا ماحول ہے، تو کتنے سارے ایکٹرز کے ہم نام یاد کر سکتے ہیں اور ہمیں ان کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی ہمارا ان سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے صفاتی 99 نام ہیں۔ اب صفاتی رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، حکیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ان سب کے مطلب الگ الگ ہیں۔ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، جب صفات ہے۔ تو اگر یہ صفاتی نام ہم یاد کر لیں گے تو ان کا بڑا فائدہ ہے، اور بڑا فائدہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یا بندی اللہ کے 99 صفاتی ناموں کو یاد کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک جگہ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ جو بندہ یا بندی اللہ کے صفاتی جو نام ہیں 99 نام ہیں ان کو یاد کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے یا کوئی مسائل اٹکے ہوئے ہیں اور اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے اگر ہم ان 99 ناموں کو یاد کرنے کے بعد ان 99 ناموں کو یاد کرنے کے بعد پھر اللہ کو ان 99 مارا جائے جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، 99 کے 99 نام صفاتی، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کو پکارا جائے، اور اللہ کو پکار کر یعنی 99 نام بول کر اللہ سے پھر اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے یا بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم شوق سے، دل لگی کے ساتھ، اپنے ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے صفاتی 99 کو یاد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آگے عقائد، توحید باری تعالی، توحید باری تعالی عقائد میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے، قرآن کریم میں ایک آیت، ایک چھوٹی سی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، فرمایا اے نبی جی آپ کہہ دو لوگوں سے قل هو اللہ، اے لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، جس طرح ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہمیں ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں سب چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، پانی کی حاجت بھی ہوتی ہے، کھانے کی بھی حاجت ہوتی ہے، سونے کا بھی تقاضا ہوتا ہے، آرام کا بھی تقاضا ہوتا ہے، ہمیں بخار بھی ہوتا ہے، ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، ہمیں درد بھی محسوس ہوتا ہے، ہمیں ہر ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ ہر ایک چیز سے بے نیاز، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت پیش نہیں آتی، اللہ نیند سے پاک، اللہ سونے سے پاک، ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ پاک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
लम यलिद वलम यूलद। फरमाया आगे, ना तो अल्लाह तबारक व तआला किसी से पैदा हुए हुए हैं और ना ही कोई अल्लाह से पैदा हुआ हुआ है। मतलब दूसरे अल्फाजों में कि ना तो अल्लाह किसी की औलाद है, ना ही अल्लाह की कोई औलाद। अल्लाह औलाद से भी पाक है, अल्लाह की औलाद भी नहीं है और अल्लाह ताला खुद भी किसी की औलाद नहीं है। अल्लाह तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और अकेले हैं, तने तना हैं, और हर एक चीज के अल्लाह मालिक है। हर एक चीज अल्लाह के कब्जे कुदरत के अंदर है। हर चीज को अल्लाह ने अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से, अपने हुक्म से पैदा फरमाया है, और पैदा फरमाकर अल्लाह ने उन तमाम की तमाम चीजों को फिर अपने ही कब्जे और कुदरत के अंदर रखा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने अपने हुक्म और कुदरत से उन तमाम चीजों को पैदा फरमा दिया और इस सारे कायनात को, सारे निजाम को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, और इस निजाम को पैदा फरमाने के बाद इस निजाम की बागडोर अल्लाह ने बंदों के हाथ में थमा दी हो। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हर चीज को अपनी कुदरत से पैदा किया, अपने हुक्म से पैदा किया, और अल्लाह ने अपने ताकत से पैदा किया, और उसको पैदा करने के बाद तमाम की तमाम चीजों को अल्लाह ने अपने कब्जे के अंदर रखा है, अपनी ताकत के अंदर रखा है। तो इसलिए फरमाया अकायद के बारे में कि हमारा अकीदा ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला सिफात में भी पाक, अल्लाह ताला हर एक चीज में किसी के मोहताज नहीं है, किसी भी चीज अल्लाह बेनियाज है, हर चीज के मालिक अल्लाह है, हर चीज अल्लाह की मोहताज है, और अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। समझे भी? हाँ, जिस तरीके से दुनिया की चीजें होती है, हर आदमी किसी न किसी का मोहताज होता है, बल्कि इंसानों के साथ में दूसरी और भी चीजें मोहताज होती हैं। जो भाई अगर मूड क्या होगा तो मैं चलूंगा, मैं अकेले। हाँ, जिस तरीके से इंसान मोहताज होता है, तो इंसान अलावा बाकी इंसानों के अलावा जो चीजें हैं वो भी मोहताज होती हैं, हर चीज। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, अल्लाह की हर एक चीज मोहताज है। आगे अकायद हो गया, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। आगे मसाइल, मसाइल में आज क्या बयान करना है? मसाइल में पानी से इस्तिंजे का हुक्म, समझे? पानी से इस्तिंजे का हुक्म, कि इस्तिंजे का हुक्म कब कब क्या क्या लगता है। पानी से इस्तिंजा कर रहे हैं हम, तो पानी से इस्तिंजा करने का हुक्म क्या है? मसलन जब गंदगी यानी पेशाब या पाखाना अगर हमारे निकलने की जगह के अलावा से किसी दूसरी जगह लग गया है, अगर गंदगी अपनी जगह के अलावा किसी दूसरी जगह लग जाए, अपनी जगह के यानी अपनी निकलने की जगह के अलावा किसी दूसरी जगह अगर लग जाए, और उसका लगना एक दिरहम तकरीबन 1 इंच, 1 दिरहम से ज्यादा अगर लग जाए, तो फिर इस्तिंजा करना फर्ज हो जाता है। इस्तिंजा जो है फिर फर्ज हो जाता है। अगर गंदगी पेशाब या पाखाना अपनी निकलने की जगह के अलावा से दूसरी जगह लग जाए और 1 दिरहम से ज्यादा अगर लग जाए, तो फिर इस्तिंजा करना हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है। अगर 1 दिरहम से ज्यादा लग जाए तो फिर फर्ज हो जाएगा, और अगर वही गंदगी अपनी जगह के निकलने के अलावा किसी दूसरी जगह लग जाए और 1 दिरहम से ज्यादा ना हो, 1 दिरहम के बराबर हो, तो फिर इस्तिंजा करना वाजिब होता है, फर्ज नहीं होता, फिर वाजिब होता है। जब 1 दिरहम के बराबर होती है गंदगी, हो जाएगा 1 दिरहम से 1 दिरहम के बराबर है तो फिर वाजिब हो जाएगा। और अगर गंदगी पेशाब या पाखाना 1 दिरहम के बराबर भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, अलबत्ता 1 दिरहम से कम है, तो फिर इस्तिंजा करना सुन्नत। और चौथा दर्जा इस्तिंजे का वो बिदअत है। मसलन किसी का वजू टूट गया,
किसी का वुजू टूट गया, वुजू टूटने के बाद अब आदमी इस्तिंजा करने में लग गया, तो वो इस तरह की चीज लगी नहीं है बदन पर और वुजू टूट गया, वुजू टूटने के बाद अब वो इस्तिंजा करने में लगा हुआ है, बिला वजह इस्तिंजा कर रहा है, खामखा इस्तिंजा कर रहा है, तो ये वक्त को जाया करना होता है और फिर बहुत सी चीजें होती हैं ये जो कि, और ये फिर बिदात होता है। गंदगी लगी हो फिर उस पर इस्तिंजा किया जाए, महज वजू टूटने की बुनियाद पर इस्तिंजा किया जाए, तो फिर ये अमल करना ये बिदात है। 4 किस्म हो गई, 4 अक़साम पानी से इस्तिंजा करने के 4 किस्में हैं। नंबर 1 फर्ज, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 सुन्नत, नंबर 4 बिदात। अगर 1 दिरहम से ज्यादा है, गंदगी लगी हुई है 1 दिरहम से ज्यादा, तो फिर फर्ज हो जाए करना, और 1 दिरहम के बराबर है तो फिर वाजिब हो जाता है, और अगर 1 दिरहम से कम है तो फिर सुन्नत है, और अगर 1 दिरहम के बराबर भी नहीं है, कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, और गंदगी है ही नहीं, महज वजू टूटने की बुनियाद पर इस्तिंजा कर रहा है, तो फिर यह अमल करना बिदात। आगे दुआ, दुआ वजू के शुरू और दरमियान की दुआ। शुरू की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम वजू शुरू करेंगे, क्योंकि हर अमल को, हर नेक अमल को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह तो हमें पढ़ना ही है। अब वजू करेंगे हम बिस्मिल्लाह, वजू भी अच्छी चीज है, नेक चीज है, अच्छी चीज है, तो इसको भी शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके वजू शुरू कर देंगे। उसके बाद जब वजू के दरमियान में पहुंचेंगे तो फिर दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। ये दुआ है दरमियान की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, ववस्सिअली फी दारी, मेरे घर में वसअत पैदा फरमा, और बारिक ली फी रिज़्क़ी, और मेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत पैदा फरमा। ये बड़ी अच्छी दुआ है, इसको याद। ये आज का हमारा मुकम्मल सबक हो। जिसको कोई बात समझ में नहीं हो वो आप मालूम कर सकती हैं। मुफ्ती साहब, आपने बताया कि 1 दिरहम से ज्यादा अगर लग जाए तो इस्तिंजा करना फर्ज है। ये इस्तिंजा करना फर्ज, इसका मतलब क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब इस्तिंजे को पाकी हासिल करना, मतलब पाकी हासिल करना। चलो तालीम हो जाए, मतलब नहाना पड़ेगा ना? बस खत्म होने वाला। नहाना नहीं, धोना, धोना, वो तो गुस्ल हो जाएगा, वो तो फिर गुस्ल हो जाएगा, नहाना नहीं है, उसको धुलना, धुलना तो पाक हो जाएगा। हाँ। मुफ्ती साहब, आपने बताया कि अल्लाह पाक का ना कोई औलाद है और ना ही मतलब वो किन्हीं का औलाद है, ना अल्लाह पाक का औलाद है। तो हम लोग जानते हैं कि नबी का हम लोग उम्मती हैं, तो अल्लाह का, जब अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह हम सब, मतलब हम सबको 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है, मतलब किस चीज का ये वो अल्लाह और हमारे दरमियान जो कनेक्शन है वो एक बंदे और रब का दरमियान, बंदा और रब के दरमियान कनेक्शन है कि मेरे बंदे हैं। जिस तरीके से माँ और बेटे के दरमियान जो कनेक्शन होता है प्यार और मोहब्बत का, वो होता है एक, क्योंकि वो उसके खून से निकला होता है, वो उसके जिस्म से पैदा होता है। इसलिए तो आपको लग रहा होगा कि शायद जब माँ की मोहब्बत से 70 माओं से ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है, तो माँ तो बच्चे से जो मोहब्बत करती है वो इस बुनियाद पर करती है कि वो उसके जिस्म से निकला होता है। इसमें ऐसा नहीं है, मोहब्बत तो एक अलग चीज है। मोहब्बत के लिए रुको ना, हमें थोड़ा सा हो गया, हमारा खत्म होगा बस 10 मिनट क्लास। मोहब्बत के लिए नहीं, आप सुने पूरी बात। मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे जिस्म का ही कोई हिस्सा हो तभी हम मोहब्बत करें, ऐसा नहीं होता। ये माइक म्यूट कर लें, कंफ्यूज हो रहा है बहुत, आवाज नहीं आ रही। किसी का माइक खुला है मुफ्ती साहब? हाँ, माइक म्यूट कर लें थोड़ी देर के बाद है, उसके बाद में क्लास खत्म हो जाएगी फिर। हाँ, तो मतलब बताना मैं ये चाह रहा था कि मोहब्बत करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारा उससे जिस्म का ताल्लुक होना जरूरी हो।
बगैर जिस्म के ताल्लुक की भी मोहब्बत हो जाती है। बाद मरतबा कोई दूसरा इंसान होता है, हमारा जिस्म का कोई कनेक्शन उससे नहीं होता, लेकिन मोहब्बत हो जाती है। तो मोहब्बत तो एक अल्लाह की सिफत है। मोहब्बत जो है, मोहब्बत करना, ये अल्लाह की सिफत है। इससे ये साबित नहीं होता कि अल्लाह के हम औलाद हुए, नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं, औलाद नहीं है। और बंदगी और रब के दरमियान जो ताल्लुक और हमारा मोहब्बत का ताल्लुक है, वो बंदगी और बंदा और रब के दरमियान का ताल्लुक है, जो मोहब्बत है। क्या हमारा रब वो है और हम उसके बंदे हैं। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे से समझना है जी। मेरा एक क्वेश्चन है मुफ्ती जी। साहब, आपने कहा कि दुनिया में जितनी भी कुदरती चीजें जो अल्लाह ने पैदा की, तो इस दुनिया में जो फितना हो रही है, जो गलत काम हो रहे हैं, तो वो क्या अल्लाह की मर्जी से हो रहा है? देखिए, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, हर चीज, हर चीज, हर तो चीज। फिर इतना रॉन्ग हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है इस दुनिया में, तो फिर अल्लाह ताला उसको रोक नहीं सकते, या फिर उस चीज को मतलब होते जा रहा है, वो चीज मतलब गलत पे गलत होते जा रहा है, गुनाह पे गुनाह होते जा देखिए रहा है। देखिए इवन हम देखिए लोग भी देखिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं मेंशन कर देखिए, रही हूँ, सुने हम लोग भी कर रहे सुने हैं। सुने अच्छा सुने, देखो, जी जी अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, ठीक है। ये तो इतना तो कंफर्म हो गया कि जी अल्लाह हर जी, चीज पे कादिर है, बेशक ठीक है। हाँ, बेशक। अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो सारी कायनात को, सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह ताला अपनी बंदगी करने पर मजबूर कर सकते हैं। यानी उनको अल्लाह ताला बेशक चाहें जी तो अल्लाह ताला सारी इंसानियत को, काफिरों को, मुशरिक को, मजूसियों को, हर एक को अल्लाह ताला अपने सामने झुका सकते हैं, अल्लाह चाहे तो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, जी ऐसा नहीं है। जी यहाँ तो अल्लाह ने आजमाइश के लिए हमें दुनिया के अंदर भेज दिया। मसलन हमसे अल्लाह ताला ने एक सवाल जी किया, जब अल्लाह ने दुनिया के अंदर हम सबको नहीं भेजा था, उस वक्त में अल्लाह ने हमसे सवाल किया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो हम तमाम रूहों ने इकट्ठा होकर फरमाया था कि हाँ अल्लाह आप हमारे रब हैं। हमने बाकायदा इकरार किया है वहाँ अल्लाह का कि अल्लाह आप हमारे रब हैं, हम आपकी मानेंगे और आपकी फरमा बरदारी करके जिंदगी गुजारेंगे, हम हर एक वादा करके आए। तो अब उस वादे को परखने के लिए, जांचने के लिए अल्लाह ने फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ दुनिया के अंदर भेज दिया, एग्जामिन करने के लिए कि देखो मेरे बंदे मेरी क्या मान की जिंदगी गुजारेंगे या नहीं गुजारेंगे। दूसरी बात कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन, कि क्या मैंने तुम्हें दो आंखें नहीं दी। आगे फरमाया वहदैनाहु नजदैन, क्या मैंने तुम्हें दो रास्ते नहीं दिखाए। एक दो रास्ते होते, दो रास्ते हैं, अल्लाह ने दो आंखें दी हैं, दो रास्ते हैं, एक रास्ता जन्नत वाला रास्ता, एक रास्ता जहन्नम वाला रास्ता। अब बंदे की मर्जी है, बेशक बंदे की मर्जी क्या है। अल्लाह ताला हदीस शरीफ के अंदर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है, अमाल का दारो मदार। दूसरी बात हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं कि अना इंदा ज़न्नी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसा मामला करता हूं जैसा कि वो मुझसे गुमान रखता है। अब अल्लाह के साथ हमने जो भी गुमान रखा है, अल्लाह हमारे साथ में वैसा फैसला फरमाएंगे। अब जो हमारी नियत होगी, जिस काम को करने की हमारी नियत होगी, उस काम को अल्लाह हमसे करवा देगा। अगर हमारे काम की नियत है कि हम नेक काम करेंगे तो अल्लाह हमें उस पर चला देगा। हमारे काम का इरादा हुआ, गलत काम करने का इरादा हुआ, तो अल्लाह हमें उस पर चला देगा। ये हमारी हमारी चॉइस होती है, अल्लाह की मर्जी होती है चलाना, कि अल्लाह चलाएगा। सीधे रास्ते पर चलना चाहोगे उस रास्ते पर चलाएगा, गलत पर चलना चाहोगे अल्लाह उस पर भी चलाएगा। बाकी इसका हिसाब और किताब वो आखिरत में हो जाएगा। जी, लेकिन शुक्रिया लेकिन आपको। जी लेकिन होता अल्लाह की मर्जी से ही है, ठीक है। बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह को हर एक चीज का मालूम है, ये गैब की बातें हैं कि अल्लाह को कोई कौन बंदा क्या करेगा, कितने दिन जिएगा, कितने नेक काम करेगा, कितने गुनाह करेगा, हर एक चीज को अल्लाह को मालूम है। लेकिन हम बंदे हैं, हमें इन चीजों का मालूम नहीं है, हम चीजों का इल्म नहीं है, तो हमें जो हुक्म दिया गया है वो हमें नेक जी काम को करने का हुक्म दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल छोटी सी और, मसलन सुसाइड करते हैं लोग, ठीक है, सुसाइड करते हैं।
अब सुसाइड करने के बाद एक सवाल पैदा होता है कि सुसाइड करना भी अल्लाह की मर्जी से हुआ, सुसाइड भी करना अल्लाह की मर्जी से हुआ, तो फिर अल्लाह ने इस पर गुनाह क्यों रखा है? अल्लाह ने इस पर गुनाह क्यों रखा है? क्योंकि बंदा मरता तो अल्लाह की मर्जी से ही है, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो बंदा मर नहीं सकता, लेकिन सुसाइड कर दिया किसी ने। अब सुसाइड करने के बाद में अल्लाह उसको गुनाह क्यों दे रहे हैं? गुनाह इसलिए दिया जा रहा है कि मसलन इस बात को सुसाइड वाले मसले को समझने से पहले एक बात ये समझे कि दो बंदों में लड़ाई हुई, दो बंदों में झगड़ा हो गया, एक बंदे ने एक बंदे को मार दिया, गला काट दिया, और जब दूसरे बंदे ने एक बंदे ने दूसरे बंदे का गला काट दिया, गला काटने के बाद कातिल को सजा होती है दुनिया के कानून के हिसाब से कि भी तुमने इसको गर्दन क्यों काटी। अब वो बंदा यूं कह सकता है कि भी मैंने गर्दन कहाँ काटी है, इसका तो मौत का वक्त आधा था, ये तो मरने ही वाला था, मैं गर्दन नहीं काटता तो थोड़ी देर के बाद मर जाता, तो मैंने तो इसकी हेल्प की है मरने में, तो मुझे सजा क्यों हो रही है? तो इसका जवाब उनको ये मिलेगा, कातिल को ये जवाब मिलेगा कि भी क्या तुम्हें इसका मालूम था कि ये मरने वाला है? तुम्हें तो मालूम ही नहीं था कि ये मरने वाला है, तुमने तो ये सोच के इसको मारा था कि मैं इसकी जान ले लूंगा, बल्कि इसकी आगे की जिंदगी खत्म कर दूंगा। तुम्हें क्या मालूम था कि इसकी आगे की जिंदगी है नहीं है? इसी तरीके से सुसाइड में आदमी अपने आप को मार लिया। अब मारने के बाद में बंदे के अल्लाह ताला कहेंगे कि क्या बंदे तुम्हें मालूम था इस बात से कि तुम मरने वाले हो अगले सेकंड में, अगले पल में? तुम्हें मालूम तो नहीं था, लेकिन तुम्हें तो उम्मीद थी कि मैं अभी बहुत साल जीऊंगा, लेकिन तुमने जो सुसाइड किया है वो सुसाइड इसी बुनियाद पे किया है ये सोचकर कि मैं अपने आगे की जिंदगी को खत्म कर लेता हूँ, समझे? यानी कि जो गैब की बातें हैं वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अगर हम उन चीजों को जानने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं जान सकते। और गैब की बातों में एक तरीके से ऐसा होता है कि गैब की बातों में दखल अंदाजी करना जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है। समझ आ गया? जी मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब जी जो मुफ्ती साहब आपने बहुत अच्छे से माशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब जो आपने वो दुआ बताई है वो बाद में पढ़ी जाएगी वज़ू के बाद, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वज़ू के बाद पढ़ी जाएगी, वुज़ू के दरमियान में, बीच में वुज़ू के बीच में। मुफ्ती साहब अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तौबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से बना दे, वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, और मुझे पाक साफ रहने वालों में से बना दे, यानी पाक लोगों में से बना दे, तौबा करने वालों में से और पाक लोगों में से अल्लाह मुझे बना दे। ये जी मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना है, जो वज़ू के दरमियान में दो बताइए वो एक ही बार